हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। सो दोस्तों, इस वक्त की जो दो बड़ी खबरें आ रही हैं उसमें से एक बहुत बड़ी खबर है एक्सेंचर की। एक्सेंचर ने बोला है कि 2.5% इम्प्लाई का जो उनका स्ट्रेंथ है वो कम रिड्यूस करेगा नेक्स्ट 18 मंथ में। और उसके ऊपर इसको हम सुन लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये एक बड़ी खबर है, और वो किस तरीके से बड़ी खबर हो सकती है मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहले हम इसको सुन लेते हैं यहाँ Tell us पे। from the initial reading, it clearly doesn't look as bad as was feared. These numbers may be a mixed bag, but what's your reading? Well, the quarterly results are actually better than expected across the board. So that's number one. The outlook is probably better than feared. They took numbers down. Constant currency revenue growth went from 8 to 11. सो दोस्तों, यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला है इनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी अभी बढ़ा है। बट अब आप एक चीज़ नोटिस करना कि जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आईटी सेक्टर बढ़ता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आईटी सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए वो खुद ही एक अपने लिए परेशानी खड़ी करने जा रहे हैं। तो ये उसका ही एक आता हुआ इम्पैक्ट है। जो एक्सेंचर से, गूगल से, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ से लोगों की जॉब जा रही है। और आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर में मतलब देखो, आईटी सेक्टर तो बूम कर सकता है, बट उसके अंदर जो लोग जो एम्प्लॉयज हैं जिनके पास उन जो अभी कॉलेज से ये सोच के आईटी सेक्टर में जाने की सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि हम आईटी सेक्टर में जाएंगे और कुछ करेंगे, कुछ सीखेंगे, मतलब हम आईटी सेक्टर में ही जाके अपना करियर बनाएंगे, तो उनके लिए परेशानी वाले दिन आने वाले टाइम हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनियां, बिकॉज देखो, कंपनी कोई भी कंपनी हो मार्केट में अपना बिजनेस करने बैठी हुई है, राइट। तो ये एक्सेंचर की न्यूज़ है कि इसने 19,000 का प्लान किया एम्प्लॉयज निकालेगी ग्लोबली। इसको और सुन लेते हैं और क्या है। 7% to 8 to 10%, not terrible. We were thinking that numbers are probably going to be a bit more conservative at roughly at about 8. And that the outlook is probably a bit more back and loaded. Um, and look, you have a combination of the macro that's out there, the potential impact from what happened with some of the regional banks, uh, and uh, and the fact that sales cycles probably have been pretty unpredictable and probably got a bit longer recently. Moshe, on the jobs front, it shouldn't really surprise us because the IT industry has been announcing one layoff after another, and clearly Accenture is no exception. 2.5% cut in jobs, which means 19,000 jobs at Accenture will be lost. How are you looking at that aspect of what they reported? Oh, I think that job cuts and headcount, reductions is something that we've seen across the board. I think that in this environment, that gives you a lot of flexibility in case, as you said, that demand continues to slow down. It's really difficult to come out and say this is going to happen or not. That's why I call the situation fluid. Fluid means things can get worse or they can get better. And I think at this point, that's part of that uncertainty that we're talking about. But Moshe, what's the path ahead looking like for Accenture? Going by their order book, it has remained pretty resilient and surprisingly so in Q2. But is this trend, if it is that, likely to sustain? Yeah, because what's really working now is anything that has to do with cost optimization. And I believe that Accenture is one of those companies that knows how to do it really well. I would put in the same bucket, the likes of Infosys, TCS, Cognizant. Many of the tier one and tier two offshore companies know how to get it done. So the pipelines are going to be very strong. The bookings are going to be very strong. The unknown factor is going to be the conversion rates. So companies still have to make those decisions to go ahead and fund those contracts. And that could be the tricky part of all this. See, you have to make a distinction between what's committed in the pipeline versus what's funded. And they tend to be a bit different in this environment. That's largely about Accenture, Moshe. What about Indian IT stocks? Do you think we've priced in the worst, that things are likely to look up? How are valuations looking at this point, and the risk-reward ratio? Relative to other large cap tech names, these are companies that are very profitable. They generate a respectable amount of free cash flows. So trading
And these multiples now look very, very, I would say, reasonable. सो फ्रेंड, ये जो न्यूज़ आई है एक्सेंचर की, और उस न्यूज़ का ये इम्पैक्ट आप देखो, 8% एक्सेंचर भागा है। और ये आईटी का दिग्गज प्लेयर है, जो सबसे बड़ा प्लेयर ग्लोबल का है। अगर ये 8% भागा है आज ऊपर, तो हो सकता है कि अब आईटी आने वाले दिनों में अभी ऊपर की तरफ मूवमेंट आए शेयर मार्केट में। तो कुछ कॉर्पोरेट इस तरीके के स्टेप्स उठाते हैं, कोई रीजन हो सकते हैं उनके, बट देखो बिजनेसमैन है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो उनको अपना बिजनेस ग्रो करना है, उनको क्या करना है, लोगों को रखें नहीं रखें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ भी रहा है अभी, राइट। तो अब देखो कि ये 8% ये भागा है, और साथ में ये विप्रो का अभी लाइव शेयर है विप्रो के, ये 1.37% भागा है विप्रो। और इन्फोसिस 2.35% अभी भाग गया है ग्लोबली। तो ये जो तीन मैंने आपके साथ अभी शेयर आपको मैंने अभी बताए हैं, इनका कल जो इम्पैक्ट है बहुत जबरदस्त आने वाला है आईटी सेक्टर में। और आप कल देखना, कल आईटी के अंदर धमाल मचने वाला है। और आने वाले दिनों में अब आईटी एकदम से वापस से एक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, राइट। तो देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आता है। इन्फोसिस की भी एक न्यूज़ आई है कि उनका क्या न्यूज़ आई है, एक बारी देखते हैं। उसका भी कोई न्यूज़ आई है, उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई रिटायरमेंट हुआ है, किया है। तो अब ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट हो रही हैं आईटी सेक्टर में, तो अब ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर ऊपर की तरफ जाए। तो अब बुलिश हूँ मैं आईटी सेक्टर को लेके, अब जो सिचुएशन अभी फिलहाल दिख रही है। तो अभी हम एक काम करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं फटाफट। और निफ्टी बैंक निफ्टी को देखते हैं, और ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे साथ में। राइट, ठीक है। तो पहले हम अभी लाइव मार्केट में देखते हैं डोजोन का। देखो जो डो जोन्स है, और अभी 1.21% का मूवमेंट ऊपर की तरफ है। कल रात को काफ़ी भयानक गिरावट देखने को मिली थी, और अभी 1.2% का ऊपर अच्छा मूवमेंट आया है डोजोन में। और ऐसे ही जो हमारा एस जी एक्स का चार्ट है, वो भी अगर हम देखेंगे तो ये भी 0.52, ये भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ बड़ी न्यूज़, बड़ी डेवलपमेंट दिख रही है आईटी सेक्टर में, और कुछ ग्लोबल इंडेक्स में। और उसका जो इम्पैक्ट है कल, जैसे निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं, तो निफ्टी, ये मैंने कुछ लेवल्स मार्क करे थे। और अगर देखा जाए तो ये एक लेवल इम्पॉर्टेंट है। इस लेवल यहाँ तक मार्केट आया, और उसके बाद में दो बार ही आया देखो। एक बार सुबह सुबह आ गया था यहाँ पे, बाद में एक आया यहाँ पे नीचे की तरफ आया। तो एक लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो इन लेवल्स को पहले मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर इनको हटा देते हैं। फिर आपके साथ मैं लेवल शेयर करूँगा। देखो दोस्तों, कभी भी एक चीज़ नोटिस करो कि जब हम ट्रेड में होते हैं तब हमारी साइकोलॉजी कैसी होती है, और जब हम ट्रेड में नहीं होते तो तब साइकोलॉजी कैसी होती है। ये पूरा साइकोलॉजी का खेल है, पूरा ट्रेडिंग का। और अगर इसके अंदर अगर आप गिरगिट की तरह अगर आपको रंग बदलना आता है, तो आपको इसके अंदर सक्सेस मिलती है। अदरवाइज आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी सीख लो, अगर आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर इसके अंदर सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, राइट। तो फ्रेंड, जल्दी से हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट, और क्या समझ में आता है और क्या दिखाई देता है, किस तरीके से मार्केट कल चलने वाली है। और इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो देखो, कल गैप अप तो खुलने वाली है मार्केट, राइट। तो कहाँ पे गैप अप ओपन हो सकता है, मार्केट इस लेवल पे वापस से आ सकती है, राइट। तो ये लेवल ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कल आईटी सेक्टर भी भागने वाला है। इसकी मैं मतलब जो मुझे अभी करंट ग्लोबल सिनेरियो दिख रहे हैं, उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि आईटी कल भागने वाला है, राइट। तो देखो, यहाँ कहीं पे मार्केट ने ओपन होना है, यानी यहाँ पे होगा, राइट। हाँ, यहाँ पे ओपन होगा, और जैसे ही अगर इसके ऊपर चलता है तो आप नीचे का एक एस एल लगा के ऊपर की तरफ
आप बैठो और ये जो टारगेट्स हैं और इन टारगेट्स का आप चेस कर सकते हो इन टारगेट्स को, राइट। और नीचे की तरफ मुझे फिलहाल तो दिखता नहीं है। डो जोन्स भी 450 पॉइंट ऊपर चला गया है और एसजीएक्स भी अच्छा खासा भाग रहा है, आईटी सेक्टर भागा हुआ है। तो मेरे को लगता नहीं कि कल कल अगर नीचे आता है, सपोज करो, तो अगर नीचे आता है तो एक कॉल साइड लेने लेने की अपॉर्चुनिटी हमें देखना चाहिए। अगर हमें इस रेंज के आसपास भी मिल जाता है, हाँ, ये यहाँ कहीं पे भी मिलता है तो भी मैं ऊपर जाऊंगा जब तक मेरा ये लेवल नहीं टूटता। जब तक ये मेरा लेवल जो है, लेवल भी मार्क कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे जल्दी से, लेवल को भी मार्क कर लेते हैं। ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर ये टूटता है, सपोज करो, तो हम लोग नीचे जा रहे हैं, अदरवाइज ऊपर ही है, इसके ऊपर बुलिश है, इसके नीचे बियरिश है। ये जो 1707 ले लो या 1705 आप ले लो, इसके नीचे हम बियरिश हैं, इसके ऊपर बुलिश हैं हम लोग, राइट। और कौन कौन से टारगेट हम लोग देख लेते हैं, और इसके ऊपर अगर निकलते हैं, इसके ऊपर निकलते हैं, फिर तो यहाँ तक तो जाएंगे जाएंगे, और हो सकता है हम यहाँ पे भी मिलें कल। बट कुछ कह नहीं सकते बिकॉज हिडनबर्ग का कोई वो बोला है कि कुछ रिसर्च करके लेकर आए, कोई नया कोई रिपोर्ट वगैरह लेकर आए, तो यू नेवर नो कि कल क्या होगा। और ये सिर्फ ना देखो एनालिसिस होते हैं, ये एक दिमाग में ना थोड़ा सा सेट हो जाता है कि हाँ अगर ऐसा होता है तो ये होगा, जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है। और कल अगर इसके अपोजिट कोई न्यूज आ जाती तो वन शुड बी रेडी कि उसको इसके अपोजिट भी ट्रेड लेने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने अगर ऐसा किसी यूट्यूबर ने ये सारी डिटेल शेयर की है तो बस यही पत्थर की लकीर है, इसके आगे दिमाग नहीं चलता हमारा, हमको ये करना नहीं, ऐसा नहीं करना आपने, और मैंने भी नहीं करना, किसी ने ऐसा नहीं करना। तो हमें सिचुएशन देख के ऐसे लगा के फिर ट्रेडिंग करनी है प्रॉपर। और नीचे के लेवल, ये वाले लेवल मेरे को दिखते नहीं है, यहाँ तक मार्केट आएगी नहीं, बट यू नेवर नो क्या हो जाए। और ऐसे चलो अभी देखते हैं, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी के अंदर देखो मैंने ये लेवल मार्क करा था कि यहाँ से गिरेगा, और अच्छा खासा गिरा देखो, बट बाद में गिरा है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा नीचे आया है और फिर गिरा अच्छा खासा बाद में। ठीक है, तो इसको इन सब को हटा देते हैं हम लोग। देखो कल न्यूज़ थी यूएस मार्केट का, फेड का और ये सब का न्यूज़ चल रहा था, बट उससे क्या हुआ, फेड की न्यूज़ रात को आई और आज देखने को मिला, बट ये जो ऊपर मार्केट गई जिस तरीके से, और बाद में यहाँ कहीं पे 1:30 बजे के आसपास गिरावट देखने को मिली है, राइट, 1:30 के आसपास। बट सारी गेम तो इसके अंदर हो गई। यहाँ से तो होगा नहीं ना कि किसी ने यहाँ पे भी बैठ के सोचा कि मैं इस गिरते हुए मार्केट में फिर ट्रेड लूँ, तो इतना तो कोई रंग बदल भी नहीं सकता है इतनी जल्दी जल्दी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी के भी मैं लेवल वगैरह। तो फ्रेंड हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। इसको मैंने डिलीट करना भूल गया, इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो देखो ये जो आज जहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो दी है 39616 पे, और अभी मार्केट कल की बुलिश है, तो कल डेफिनेटली कल गैप अप है। ठीक है, तो कल हो सकता है हम लोग यहाँ कहीं पे मिलें, और हो सकता है हम लोग यहाँ कहीं पे मिलें, राइट। तो इतना बड़ा 400 पॉइंट का गैप अप तो मुझे दिखता नहीं है कि 400 पॉइंट का गैप अप हो जाएगा। हो सकता है कि कल बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल करे ऊपर आने में, निफ्टी आ सकता है ऊपर, और बैंकिंग सेक्टर इतना फटाफट नहीं आ सकता ऊपर। तो ये एक कल रहेगा, टसल रहेगा बैंकिंग सेक्टर वर्सेस निफ्टी का, बिकॉज आईटी भागने वाला है कल। तो अभी जो ग्लोबल मार्केट है वो भी अभी मैं फिर से देख लेता हूँ, और यहाँ पे, राइट। तो डोजन भी भागा हुआ अच्छा खासा, तो निफ्टी भी भाग ही रहा है। तो हो सकता है कि अगर मार्केट,
देखो मार्केट ना अगर कल कहीं पे भी ऊपर की साइड मिलती है, सपोज करो हम इस पॉइंट को लेके चलते हैं, और इसके ऊपर यहाँ कहीं पे होल्ड करता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये एक पहला टारगेट रहेगा। देन एक ये टारगेट, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम लोग जा रहे हैं यहाँ तक, यहाँ तक का तो लेके चल सकते हैं, राइट। तो अगर ये ब्रेक होता है लेवल, अदरवाइज हो सकता है इसके अंदर ही घूमती रहे पूरे दिन मार्केट। इसको ग्रीन कर लेते हैं, राइट। और नीचे के लेवल देख लेते हैं, नीचे के लेवल, नीचे के लेवल मेरे को दिखते नहीं है नीचे, पर ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि नीचे के लेवल दिखते नहीं है, ये भी गलत थॉट है। हाँ, यहाँ से अगर ये वापस एक ऊपर नहीं जाके इसको रिजेक्शन मिलता है, हो सकता है गैप अप हो और ये ऊपर यहाँ आए, फिर यहाँ पे रुके और और एक ये सिनेरियो बने इसके अंदर, राइट। एक ये सिनेरियो बने और ये इस तरीके से अगर रुकता है, देन उसके बाद भी हमें इस तरीके का मूवमेंट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और फिर अगेन यहाँ पे स्ट्रगल चलेगा, टसल होगा और फिर ये इस तरीके से ऊपर जा सकता है, राइट फ्रेंड। तो ये एक देखो, अगर ऊपर से नीचे आएगा थोड़ी देर के लिए, बट ऊपर ही जाना है अब मार्केट ने। अभी मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा बुल रन आने वाला मार्केट में, जिस तरीके से आईटी सेक्टर भाग रहा है यूएस में, तो कल भी इंडिया का भी आईटी सेक्टर भागेगा ही। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी आप अपने सजेशन भी शेयर कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मैंने शेयर करी है वो 100% ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी लर्न कर रहा हूँ, राइट। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। मेरी तरफ से क्या कोशिश होती है कि मैं क्या बेस्ट इनपुट शेयर कर सकता हूँ, जैसे आईटी के थोड़े से डिटेल मैंने अभी इस वीडियो में शेयर करे, तो इस तरीके से क्या चीज़ें मैं शेयर कर सकता हूँ, राइट। तो अगर कोई मेरे को और बेटर कोई चीज़ मिलती है तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। तो कल देखते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट चलती है। ओके फ्रेंड, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तो मैं